जाती, कभी किसी सवाल का सीधा जवाब न देती। हमजा सोचने लगा कि ये वाकई मुझसे मुखलिस है या फिर वो भी कोई राज छुपा रही है। अब दोनों शौहर अपने अपने तरीके से शक में पड़ चुके थे। इमरान ने चुपके से सादिया के फोन पर नजर रखना शुरू कर दी और हमजा अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके सादिया के बारे में मालूमात निकालने लगा। अगर मर गया, इमरान के होश उड़ गए। एक तरफ बीवी, दूसरी तरफ लाश और तीसरी तरफ दूसरा शौहर हमजा। इमरान सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे। पुलिस को खबर मिल गई। तफ्तीश शुरू हुई तो एक लर्जा खेज इंकशाफ सामने आया। जिस आदमी की लाश थी वो दरअसल सादिया का तीसरा रिश्ता था। जी हाँ, सादिया एक वक्त में 3 ताल्लुकात में फंसी हुई थी। इमरान और हमजा को शौहर बनाया और तीसरे शख्स को पैसों के लिए इस्तेमाल करती रही। जब उसने सब कुछ फाश करने की धमकी दी तो सादिया ने उसका कत्ल कर दिया। आखिरकार सादिया ने सब कुछ मान लिया। अदालत ने सादिया को कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा दे दी। इमरान और हमजा दोनों अपनी इज्जत और जिंदगी बर्बाद होने के बाद अलग अलग हो गए और मोहल्ले में ये कहानी हमेशा के लिए मशहूर हो गई। एक बीवी के 2 शौहर और तीसरा राज जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसके 2 शौहर थे, लेकिन जब राज खुला तो पूरा मोहल्ला लहू से लाल हो गया। क्या ये मोहब्बत थी या धोखा? और आखिर किसने किसका कत्ल किया? आइए जानते हैं ये लर्जा खेज कहानी। कराची के एक पुराने इलाके में सादिया नामी लड़की रहती थी। घर वालों ने उसकी शादी इमरान से कर दी, जो कपड़ों का कारोबार करता था। चंद दिन तक सब ठीक रहा, मगर जल्द ही इमरान का असल चेहरा सामने आ गया। शराब, गुस्सा
اور شک کرنے کی عادت سعدیہ کی زندگی جہنم بن گئی۔ ایک دن کالج کی ایک پرانی دوست کے فنکشن میں سعدیہ کی ملاقات ہوئی حمزہ سے۔ حمزہ نہ صرف تعلیم یافتہ تھا بلکہ اپنی گفتگو اور رکھاؤ سے فوراً متاثر کر دیتا تھا۔ اس کا انداز، اس کی بات کرنے کی نرمی اور سب سے بڑھ کر سعدیہ کو عزت دینا، یہ سب وہ چیزیں تھیں جو اسے عمران سے کبھی نہ مل سکیں۔ رفتہ رفتہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چھپ چھپ کے فون کالز، میسیجز اور کبھی کبھار ملنے کے بہانے۔ سعدیہ کو محسوس ہوا کہ حمزہ کے ساتھ وہ سکون ہے جو عمران کی سخت مزاجی اور غصے میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ لیکن حمزہ کے بارے میں ایک راز تھا جو سعدیہ کے لیے ایک معمہ بن گیا۔ حمزہ اکثر اپنی نوکری کے بارے میں بات کرنے سے کتراتا تھا۔ وہ بس اتنا کہتا، میں ایک حساس ادارے میں کام کرتا ہوں، زیادہ سوال مت کرو۔ کبھی کبھی وہ اچانک کئی دنوں کے لیے غائب ہو جاتا، فون بند، کوئی رابطہ نہیں۔ واپسی پر اس کی آنکھوں میں نیند کی کمی اور چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی ہوتی۔ سعدیہ نے کئی بار پوچھا، آخر تم کرتے کیا ہو؟ لیکن جواب ہمیشہ ایک ہی تھا، تمہیں جتنا جاننا چاہیے تم اتنا ہی جانو، باقی تمہارے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ یہی پراسراریت سعدیہ کو مزید حمزہ کی طرف کھینچنے لگی۔ آخر کار دونوں نے خفیہ نکاح کر لیا۔ اب سعدیہ کے دو شوہر تھے، عمران اور حمزہ، لیکن کسی کو بھی دوسرے کے بارے میں علم نہ تھا۔ اصل مسئلہ تب شروع ہوا جب عمران کو سعدیہ کے رویے میں تبدیلی محسوس ہونے لگی، اور دوسری طرف حمزہ کے غائب ہونے کے دن بڑھنے لگے۔ سعدیہ کے ذہن میں ایک خوفناک سوال گونج رہا تھا،
کیا حمزہ واقعی وہ ہے جو کہتا ہے، یا پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو سب کچھ تباہ کر دے گا؟ دن کے وقت سعدیہ اپنے شوہر عمران کے ساتھ رہتی، کھانا بناتی، گھر کے کام کرتی اور عام گھریلو بیوی کی طرح کا کردار نبھاتی۔ لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا چھا جاتا، وہ مختلف بہانے بنانے لگتی۔ کبھی کہتی امی کی طبیعت خراب ہے، آج میکے جانا ہے۔ کبھی کہتی دوست کے گھر جانا ہے کام کے سلسلے میں۔ اور یوں ہر رات وہ چپکے سے حمزہ کے پاس پہنچ جاتی۔ محلے والے بھی سوچنے لگے کہ آخر سعدیہ کو میکے میں اتنی کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ اکثر وہاں رہنے چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ ڈبل زندگی زیادہ دن چھپ نہ سکی۔ ایک دن عمران نے اچانک سعدیہ کے بیگ میں جھانکا۔ اندر سے ایک نیا سم کارڈ اور کچھ کاغذات نکلے۔ جب اس نے پوچھا تو سعدیہ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بہانے بنانے لگی، لیکن عمران کو شک ہو چکا تھا۔ ادھر دوسری طرف حمزہ کو بھی شک ہونے لگا۔ سعدیہ اکثر فون کالز کے دوران گھبرا جاتی، کبھی کسی سوال کا سیدھا جواب نہ دیتی۔ حمزہ سوچنے لگا کہ سعدیہ واقعی مجھ سے مخلص ہے، یا پھر وہ بھی کوئی راز چھپا رہی ہے۔ اب دونوں شوہر اپنے اپنے طریقے سے شک میں پڑ چکے تھے۔ عمران نے چپکے سے سعدیہ کے فون پر نظر رکھنا شروع کر دی، اور حمزہ اپنے تعلقات استعمال کر کے سعدیہ کے بارے میں معلومات نکالنے لگا۔ لیکن سعدیہ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اب وہ ایک ایسے جال میں پھنسنے جا رہی ہے جہاں ایک جھوٹ اسے بے نقاب بھی کر سکتا ہے اور اس کی زندگی کو خطرے میں بھی ڈال سکتا ہے۔ ایک رات عمران نے سعدیہ کا پیچھا کیا۔ وہ دیکھتا ہے کہ سعدیہ ایک اجنبی گلی میں جا رہی ہے۔ عمران دروازہ توڑ کر اندر گھسا تو کیا دیکھتا ہے؟ اندر حمزہ موجود تھا اور درمیان میں ایک آدمی کی خون آلود لاش پڑی تھی۔ عمران سکتے میں آ گیا۔
حمزہ چیخ کر بولا، یہ سب سعدیہ نے کیا ہے، میں بے قصور ہوں۔ سعدیہ روتے ہوئے چلائی، نہیں، یہ لاش اس شخص کی ہے جو مجھے بلیک میل کر رہا تھا، وہ ہمارے راز کھولنے کی دھمکی دے رہا تھا، میں نے بس بچاؤ کے لیے دھکا دیا اور وہ گر کر مر گیا۔ عمران کے ہوش اڑ گئے، ایک طرف بیوی، دوسری طرف لاش، اور تیسری طرف دوسرا شوہر حمزہ۔ عمران سوچ میں پڑ گیا کہ اب وہ کیا کرے۔ پولیس کو خبر مل گئی، تفتیش شروع ہوئی تو ایک لرزہ خیز انکشاف سامنے آیا۔ جس آدمی کی لاش تھی وہ دراصل سعدیہ کا تیسرا رشتہ تھا۔ جی ہاں، سعدیہ ایک وقت میں 3 تعلقات میں پھنسی ہوئی تھی۔ عمران اور حمزہ کو شوہر بنایا اور تیسرے شخص کو پیسوں کے لیے استعمال کرتی رہی۔ جب اس نے سب کچھ فاش کرنے کی دھمکی دی تو سعدیہ نے اس کا قتل کر دیا۔ آخر کار سعدیہ نے سب کچھ مان لیا۔ عدالت نے سعدیہ کو قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا دے دی۔ عمران اور حمزہ دونوں اپنی عزت اور زندگی برباد ہونے کے بعد الگ الگ ہو گئے، اور محلے میں یہ کہانی ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گئی۔ ایک بیوی کے 2 شوہر اور تیسرا راز جس نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ آج کی کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس کے 2 شوہر تھے، لیکن جب راز کھلا تو پورا محلہ لہو سے لال ہو گیا۔ کیا یہ محبت تھی یا دھوکہ؟ اور آخر کس نے کس کا قتل کیا؟ آئیے جانتے ہیں یہ لرزہ خیز کہانی۔ کراچی کے ایک پرانے علاقے میں سعدیہ نامی لڑکی رہتی تھی۔ گھر والوں نے اس کی شادی عمران سے کر دی جو کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا۔ چند دن تک سب ٹھیک رہا، مگر جلد ہی عمران کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ شراب، غصہ اور شک کرنے کی عادت سعدیہ کی زندگی جہنم بن گئی۔ ایک دن کالج کی ایک پرانی دوست کے فنکشن میں
सादिया की मुलाकात हुई हमजा से। हमजा न सिर्फ तालीम याफ्ता था, बल्कि अपनी गुफ्तगू और रख रखाव से फौरन मुतासिर कर देता था। उसका अंदाज, उसकी बात करने की नरमी और सबसे बढ़कर सादिया को इज्जत देना, ये सब वो चीजें थीं जो उसे इमरान से कभी न मिल सकें। रफ्ता रफ्ता मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। छुप छुप के फोन कॉल्स, मैसेजेस और कभी कभार मिलने के बहाने एक मुअम्मा बन गया। हमजा अक्सर अपनी नौकरी के बारे में बात करने से कतराता था। वो बस इतना कहता, मैं एक हसास इदारे में काम करता हूँ, ज्यादा सवाल मत करो। कभी कभी वो अचानक कई दिनों के लिए गायब हो जाता। फोन बंद, कोई राब्ता नहीं। वापसी पर इसकी आंखों में नींद की कमी और चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी होती। सादिया ने कई बार पूछा, आखिर तुम करते क्या हो? लेकिन जवाब हमेशा एक ही था, तुम्हें जितना जानना चाहिए तुम इतना ही जानो, बाकी तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। यही पुरस्रारियत सादिया को मजीद हमजा की तरफ खींचने लगी। आखिरकार दोनों ने खुफिया निकाह कर लिया। अब सादिया के दो शौहर थे, इमरान और हमजा, लेकिन किसी को भी दूसरे के बारे में इल्म न था। असल मसला तब शुरू हुआ जब इमरान को सादिया के रवैये में तब्दीली महसूस होने लगी और दूसरी तरफ हमजा के गायब होने के दिन बढ़ने लगे। सादिया के जहन में एक खौफनाक सवाल गूंज रहा था, क्या हमजा वाकई वो है जो कहता है, या फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज छुपा है जो सब कुछ तबाह कर देगा। दिन के वक्त सादिया अपने शौहर इमरान के साथ रहती, खाना बनाती, घर के काम करती और आम घरेलू बीवी की तरह का किरदार निभाती। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता,
वो मुख्तलिफ बहाने बनाने लगती। कभी कहती अम्मी की तबीयत खराब है, आज मेके जाना है। कभी कहती दोस्त के घर जाना है काम के सिलसिले में। और यूं हर रात वो चुपके से हमजा के पास पहुंच जाती। मोहल्ले वाले भी सोचने लगे कि आखिर सादिया को मेके में इतनी क्या मुसीबत पड़ी है कि वो अक्सर वहां रहने चली जाती है। लेकिन ये डबल जिंदगी ज्यादा दिन छप न सकी। एक दिन इमरान ने अचानक सादिया के बैग में झांका। अंदर से एक नया सम कार्ड और कुछ कागजात निकले। जब उसने पूछा तो सादिया का रंग उड़ गया। वो बहाने बनाने लगी, लेकिन इमरान को शक हो चुका था। इधर दूसरी तरफ हमजा को भी शक होने लगा। सादिया अक्सर फोन कॉल्स के दौरान घबरा जाती, कभी किसी सवाल का सीधा जवाब न देती। हमजा सोचने लगा कि सादिया वाकई मुझसे मुखलिस है या फिर वो भी कोई राज छुपा रही है। अब दोनों शौहर अपने अपने तरीके से शक में पड़ चुके थे। इमरान ने चुपके से सादिया के फोन पर नजर रखना शुरू कर दी और हमजा अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके सादिया के बारे में मालूमात निकालने लगा। लेकिन सादिया को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब वो एक ऐसे जाल में फंसने जा रही है जहां एक झूठ उसे बेनकाब भी कर सकता है और उसकी जिंदगी को खतरे में भी डाल सकता है। एक रात इमरान ने सादिया का पीछा किया। वो देखता है कि सादिया एक अजनबी गली में जा रही है। इमरान दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा तो क्या देखता है, अंदर हमजा मौजूद था और दरमियान में एक आदमी की खून आलूद लाश पड़ी थी। इमरान सकते में आ गया। हमजा चीख कर बोला, ये सब सादिया ने किया है, मैं बेकसूर हूँ। सादिया रोते हुए चिल्लाई, नहीं, ये लाश उस शख्स की है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। वो हमारे राज खोलने की धमकी दे रहा था। मैंने बस बचाव के लिए धक्का दिया और वो गिरकर मर गया। इमरान के होश उड़ गए। एक तरफ बीवी,
दूसरी तरफ लाश और तीसरी तरफ दूसरा शौहर हमजा। इमरान सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे। पुलिस को खबर मिल गई, तफ्तीश शुरू हुई तो एक लर्जा खेज इंकशाफ सामने आया। जिस आदमी की लाश थी वो दरअसल सादिया का तीसरा रिश्ता था। जी हाँ, सादिया एक वक्त में 3 ताल्लुकात में फंसी हुई थी। इमरान और हमजा को शौहर बनाया और तीसरे शख्स को पैसों के लिए इस्तेमाल करती रही। जब उसने सब कुछ फाश करने की धमकी दी तो सादिया ने उसका कत्ल कर दिया। आखिरकार सादिया ने सब कुछ मान लिया। अदालत ने सादिया को कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा दे दी। इमरान और हमजा दोनों अपनी इज्जत और जिंदगी बर्बाद होने के बाद अलग अलग हो गए और मोहल्ले में ये कहानी हमेशा के लिए मशहूर हो गई। एक बीवी के 2 शौहर और तीसरा राज जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसके 2 शौहर थे, लेकिन जब राज खुला तो पूरा मोहल्ला लहू से लाल हो गया। क्या ये मोहब्बत थी या धोखा? और आखिर किसने किसका कत्ल किया? आइए जानते हैं ये लर्जा खेज कहानी। कराची के एक पुराने इलाके में सादिया नामी लड़की रहती थी। घर वालों ने उसकी शादी इमरान से कर दी, जो कपड़ों का कारोबार करता था। चंद दिन तक सब ठीक रहा, मगर जल्द ही इमरान का असल चेहरा सामने आ गया। शराब, गुस्सा और शक करने की आदत सादिया की जिंदगी जहन्नम बन गई। एक दिन कॉलेज की एक पुरानी दोस्त के फंक्शन में सादिया की मुलाकात हुई हमजा से। हमजा न सिर्फ तालीम याफ्ता था, बल्कि अपनी गुफ्तगू और रख रखाव से फौरन मुतासिर कर देता था। उसका अंदाज, उसकी बात करने की नरमी और सबसे बढ़कर सादिया को इज्जत देना, ये सब वो चीजें थीं
जो उसे इमरान से कभी न मिल सकें। रफ्ता रफ्ता मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। छुप छुप के फोन कॉल्स, मैसेजेस और कभी कभार मिलने के बहाने। सादिया को महसूस हुआ कि हमजा के साथ वो सुकून है जो इमरान की सख्त मजाजी और गुस्से में कहीं गुम हो गया था। लेकिन हमजा के बारे में एक राज था जो सादिया के लिए एक मुअम्मा बन गया। हमजा अक्सर अपनी नौकरी के बारे में बात करने से कतराता था। वो बस इतना कहता, मैं एक हसास इदारे में काम करता हूँ, ज्यादा सवाल मत करो। कभी कभी वो अचानक कई दिनों के लिए गायब हो जाता। फोन बंद, कोई राब्ता नहीं। वापसी पर इसकी आंखों में नींद की कमी और चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी होती। सादिया ने कई बार पूछा, आखिर तुम करते क्या हो? लेकिन जवाब हमेशा एक ही था, तुम्हें जितना जानना चाहिए तुम इतना ही जानो, बाकी तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। यही पुरअसरारियत सादिया को मजीद हमजा की तरफ खींचने लगी। आखिरकार दोनों ने खुफिया निकाह कर लिया। अब सादिया के दो शौहर थे, इमरान और हमजा। लेकिन किसी को भी दूसरे के बारे में इल्म न था। असल मसला तब शुरू हुआ जब इमरान को सादिया के रवैये में तब्दीली महसूस होने लगी और दूसरी तरफ हमजा के गायब होने के दिन बढ़ने लगे। सादिया के जहन में एक खौफनाक सवाल गूंज रहा था, क्या हमजा वाकई वो है जो कहता है, या फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज छुपा है जो सब कुछ तबाह कर देगा। दिन के वक्त सादिया अपने शौहर इमरान के साथ रहती, खाना बनाती, घर के काम करती और आम घरेलू बीवी की तरह का किरदार निभाती। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता, वो मुख्तलिफ बहाने बनाने लगती। कभी कहती, अम्मी की तबीयत खराब है, आज मेके जाना है। कभी कहती,
दोस्त के घर जाना है काम के सिलसिले में, और यूं हर रात वो चुपके से हमजा के पास पहुंच जाती। मोहल्ले वाले भी सोचने लगे कि आखिर सादिया को मैके में इतनी क्या मुसीबत पड़ी है कि वो अक्सर वहां रहने चली जाती है, लेकिन ये डबल जिंदगी ज्यादा दिन छप न सकी। एक दिन इमरान ने अचानक सादिया के बैग में झांका। अंदर से एक नया सम कार्ड और कुछ कागजात निकले। जब उसने पूछा तो सादिया का रंग उड़ गया। वो बहाने बनाने लगी, लेकिन इमरान को शक हो चुका था। इधर दूसरी तरफ हमजा को भी शक होने लगा। सादिया अक्सर फोन कॉल्स के दौरान घबरा जाती, कभी किसी सवाल का सीधा जवाब न देती। हमजा सोचने लगा कि सादिया वाकई मुझसे मुखलिस है या फिर वो भी कोई राज छुपा रही है। अब दोनों शौहर अपने अपने तरीके से शक में पड़ चुके थे। इमरान ने चुपके से सादिया के फोन पर नजर रखना शुरू कर दी, और हमजा अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके सादिया के बारे में मालूमात निकालने लगा। लेकिन सादिया को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब वो एक ऐसे जाल में फंसने जा रही है जहां एक झूठ उसे बेनकाब भी कर सकता है और उसकी जिंदगी को खतरे में भी डाल सकता है। एक रात इमरान ने सादिया का पीछा किया। वो देखता है कि सादिया एक अजनबी गली में जा रही है। इमरान दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा तो क्या देखता है, अंदर हमजा मौजूद था और दरमियान में एक आदमी की खून आलूद लाश पड़ी थी। इमरान सकते में आ गया। हमजा चीख कर बोला, ये सब सादिया ने क्या है, मैं बेकसूर हूँ। सादिया रोते हुए चिल्लाई, नहीं, ये लाश उस शख्स की है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। वो हमारे राज खोलने की धमकी दे रहा था। मैंने बस बचाव के लिए धक्का दिया और वो गिरकर मर गया। इमरान के होश उड़ गए। एक तरफ बीवी, दूसरी तरफ लाश और तीसरी तरफ दूसरा शौहर हमजा। इमरान सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे।
पुलिस को खबर मिल गई। तफ्तीश शुरू हुई तो एक लर्जा खेज इंकशाफ सामने आया। जिस आदमी की लाश थी वो दरअसल सादिया का तीसरा रिश्ता था। जी हाँ, सादिया एक वक्त में 3 ताल्लुकात में फंसी हुई थी। इमरान और हमजा को शौहर बनाया और तीसरे शख्स को पैसों के लिए इस्तेमाल करती रही। जब उसने सब कुछ फाश करने की धमकी दी तो सादिया ने उसका कत्ल कर दिया। आखिरकार सादिया ने सब कुछ मान लिया। अदालत ने सादिया को कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा दे दी। इमरान और हमजा दोनों अपनी इज्जत और जिंदगी बर्बाद होने के बाद अलग अलग हो गए और मोहल्ले में ये कहानी हमेशा के लिए मशहूर हो गई। एक बीवी के 2 शौहर और तीसरा राज जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसके 2 शौहर थे, लेकिन जब राज खुला तो पूरा मोहल्ला लहू से लाल हो गया। क्या ये मोहब्बत थी या धोखा? और आखिर किसने किसका कत्ल किया? आइए जानते हैं ये लर्जा खेज कहानी। कराची के एक पुराने इलाके में सादिया नामी लड़की रहती थी। घर वालों ने उसकी शादी इमरान से कर दी, जो कपड़ों का कारोबार करता था। चंद दिन तक सब ठीक रहा, मगर जल्द ही इमरान का असल चेहरा सामने आ गया। शराब, गुस्सा और शक करने की आदत सादिया की जिंदगी जहन्नम बन गई। एक दिन कॉलेज की एक पुरानी दोस्त के फंक्शन में सादिया की मुलाकात हुई हमजा से। हमजा न सिर्फ तालीम याफ्ता था, बल्कि अपनी गुफ्तगू और रख रखाव से फौरन मुतासिर कर देता था। उसका अंदाज, उसकी बात करने की नरमी और सबसे बढ़कर सादिया को इज्जत देना, ये सब वो चीजें थीं जो उसे इमरान से कभी न मिल सकें। रफ्ता रफ्ता मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया।
छुप छुप के फोन कॉल्स, मैसेजेस और कभी कभार मिलने के बहाने सादिया को महसूस हुआ कि हमजा के साथ वो सुकून है जो इमरान की सख्त मजाजी और गुस्से में कहीं गुम हो गया था। लेकिन हमजा के बारे में एक राज था जो सादिया के लिए एक मुअम्मा बन गया। हमजा अक्सर अपनी नौकरी के बारे में बात करने से कतराता था। वो बस इतना कहता, मैं एक हसास इदारे में काम करता हूँ, ज्यादा सवाल मत करो। कभी कभी वो अचानक कई दिनों के लिए गायब हो जाता, फोन बंद, कोई राब्ता नहीं। वापसी पर इसकी आंखों में नींद की कमी और चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी होती। सादिया ने कई बार पूछा, आखिर तुम करते क्या हो? लेकिन जवाब हमेशा एक ही था, तुम्हें जितना जानना चाहिए तुम इतना ही जानो, बाकी तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। यही पुरस्रारियत सादिया को मजीद हमजा की तरफ खींचने लगी। आखिरकार दोनों ने खुफिया निकाह कर लिया। अब सादिया के दो शौहर थे, इमरान और हमजा। लेकिन किसी को भी दूसरे के बारे में इल्म न था। असल मसला तब शुरू हुआ जब इमरान को सादिया के रवैये में तब्दीली महसूस होने लगी और दूसरी तरफ हमजा के गायब होने के दिन बढ़ने लगे। सादिया के जहन में एक खौफनाक सवाल गूंज रहा था, क्या हमजा वाकई वो है जो कहता है, या फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज छुपा है जो सब कुछ तबाह कर देगा। दिन के वक्त सादिया अपने शौहर इमरान के साथ रहती, खाना बनाती, घर के काम करती और आम घरेलू बीवी की तरह का किरदार निभाती। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता, वो मुख्तलिफ बहाने बनाने लगती। कभी कहती, अम्मी की तबीयत खराब है, आज मेके जाना है। कभी कहती, दोस्त के घर जाना है काम के सिलसिले में। और यूं हर रात वो चुपके से हमजा के पास पहुंच जाती। मोहल्ले वाले भी सोचने लगे
کہ آخر سعدیہ کو مکے میں اتنی کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ اکثر وہاں رہنے چلی جاتی ہے، لیکن یہ ڈبل زندگی زیادہ دن چھپ نہ سکی۔ ایک دن عمران نے اچانک سعدیہ کے بیگ میں جھانکا۔ اندر سے ایک نیا سم کارڈ اور کچھ کاغذات نکلے۔ جب اس نے پوچھا تو سعدیہ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بہانے بنانے لگی، لیکن عمران کو شک ہو چکا تھا۔ ادھر دوسری طرف حمزہ کو بھی شک ہونے لگا۔ سعدیہ اکثر فون کالز کے دوران گھبرا جاتی، کبھی کسی سوال کا سیدھا جواب نہ دیتی۔ حمزہ سوچنے لگا کہ سعدیہ واقعی مجھ سے مخلص ہے یا پھر وہ بھی کوئی راز چھپا رہی ہے۔ اب دونوں شوہر اپنے اپنے طریقے سے شک میں پڑ چکے تھے۔ عمران نے چپکے سے سعدیہ کے فون پر نظر رکھنا شروع کر دی، اور حمزہ اپنے تعلقات استعمال کر کے سعدیہ کے بارے میں معلومات نکالنے لگا۔ لیکن سعدیہ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اب وہ ایک ایسے جال میں پھنسنے جا رہی ہے جہاں ایک جھوٹ اسے بے نقاب بھی کر سکتا ہے اور اس کی زندگی کو خطرے میں بھی ڈال سکتا ہے۔ ایک رات عمران نے سعدیہ کا پیچھا کیا۔ وہ دیکھتا ہے کہ سعدیہ ایک اجنبی گلی میں جا رہی ہے۔ عمران دروازہ توڑ کر اندر گھسا تو کیا دیکھتا ہے؟ اندر حمزہ موجود تھا اور درمیان میں ایک آدمی کی خون آلود لاش پڑی تھی۔ عمران سکتے میں آ گیا۔ حمزہ چیخ کر بولا، یہ سب سعدیہ نے کیا ہے؟ میں بے قصور ہوں۔ سعدیہ روتے ہوئے چلائی، نہیں، یہ لاش اس شخص کی ہے جو مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ وہ ہمارے راز کھولنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ میں نے بس بچاؤ کے لیے دھکا دیا اور وہ گر کر مر گیا۔ عمران کے ہوش اڑ گئے۔ ایک طرف بیوی، دوسری طرف لاش، اور تیسری طرف دوسرا شوہر حمزہ۔ عمران سوچ میں پڑ گیا کہ اب وہ کیا کرے۔ پولیس کو خبر مل گئی۔ تفتیش شروع ہوئی تو ایک لرزہ خیز انکشاف سامنے آیا۔ جس آدمی کی لاش تھی
وہ دراصل سعدیہ کا تیسرا رشتہ تھا۔ جی ہاں، سعدیہ ایک وقت میں 3 تعلقات میں پھنسی ہوئی تھی۔ عمران اور حمزہ کو شوہر بنایا اور تیسرے شخص کو پیسوں کے لیے استعمال کرتی رہی۔ جب اس نے سب کچھ فاش کرنے کی دھمکی دی تو سعدیہ نے اس کا قتل کر دیا۔ آخر کار سعدیہ نے سب کچھ مان لیا۔ عدالت نے سعدیہ کو قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا دے دی۔ عمران اور حمزہ دونوں اپنی عزت اور زندگی برباد ہونے کے بعد الگ الگ ہو گئے، اور محلے میں یہ کہانی ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گئی۔ ایک بیوی کے 2 شوہر اور تیسرا راز جس نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ آج کی کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس کے 2 شوہر تھے، لیکن جب راز کھلا تو پورا محلہ لہو سے لال ہو گیا۔ کیا یہ محبت تھی یا دھوکہ؟ اور آخر کس نے کس کا قتل کیا؟ آئیے جانتے ہیں یہ لرزہ خیز کہانی۔ کراچی کے ایک پرانے علاقے میں سعدیہ نامی لڑکی رہتی تھی۔ گھر والوں نے اس کی شادی عمران سے کر دی، جو کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا۔ چند دن تک سب ٹھیک رہا، مگر جلد ہی عمران کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ شراب، غصہ اور شک کرنے کی عادت سعدیہ کی زندگی جہنم بن گئی۔ ایک دن کالج کی ایک پرانی دوست کے فنکشن میں سعدیہ کی ملاقات ہوئی حمزہ سے۔ حمزہ نہ صرف تعلیم یافتہ تھا بلکہ اپنی گفتگو اور رکھ رکھاؤ سے فوراً متاثر کر دیتا تھا۔ اس کا انداز، اس کی بات کرنے کی نرمی اور سب سے بڑھ کر سعدیہ کو عزت دینا، یہ سب وہ چیزیں تھیں جو اسے عمران سے کبھی نہ مل سکیں۔ رفتہ رفتہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چھپ چھپ کے فون کالز، میسیجز اور کبھی کبھار ملنے کے بہانے۔ سعدیہ کو محسوس ہوا کہ حمزہ کے ساتھ وہ سکون ہے
جو عمران کی سخت مزاجی اور غصے میں کہیں گم ہو گیا تھا، لیکن حمزہ کے بارے میں ایک راز تھا جو سعدیہ کے لیے ایک معمہ بن گیا۔ حمزہ اکثر اپنی نوکری کے بارے میں بات کرنے سے کتراتا تھا۔ وہ بس اتنا کہتا، میں ایک حساس ادارے میں کام کرتا ہوں، زیادہ سوال مت کرو۔ کبھی کبھی وہ اچانک کئی دنوں کے لیے غائب ہو جاتا، فون بند، کوئی رابطہ نہیں۔ واپسی پر اس کی آنکھوں میں نیند کی کمی اور چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی ہوتی۔ سعدیہ نے کئی بار پوچھا، آخر تم کرتے کیا ہو؟ لیکن جواب ہمیشہ ایک ہی تھا، تمہیں جتنا جاننا چاہیے تم اتنا ہی جانو، باقی تمہارے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ یہی پراسراریت سعدیہ کو مزید حمزہ کی طرف کھینچنے لگی۔ آخر کار دونوں نے خفیہ نکاح کر لیا۔ اب سعدیہ کے دو شوہر تھے، عمران اور حمزہ، لیکن کسی کو بھی دوسرے کے بارے میں علم نہ تھا۔ اصل مسئلہ تب شروع ہوا جب عمران کو سعدیہ کے رویے میں تبدیلی محسوس ہونے لگی، اور دوسری طرف حمزہ کے غائب ہونے کے دن بڑھنے لگے۔ سعدیہ کے ذہن میں ایک خوفناک سوال گونج رہا تھا، کیا حمزہ واقعی وہ ہے جو کہتا ہے، یا پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو سب کچھ تباہ کر دے گا؟ دن کے وقت سعدیہ اپنے شوہر عمران کے ساتھ رہتی، کھانا بناتی، گھر کے کام کرتی اور عام گھریلو بیوی کی طرح کا کردار نبھاتی، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا چھا جاتا وہ مختلف بہانے بنانے لگتی۔ کبھی کہتی امی کی طبیعت خراب ہے، آج میکے جانا ہے، کبھی کہتی دوست کے گھر جانا ہے کام کے سلسلے میں، اور یوں ہر رات وہ چپکے سے حمزہ کے پاس پہنچ جاتی۔ محلے والے بھی سوچنے لگے کہ آخر سعدیہ کو میکے میں اتنی کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ اکثر وہاں رہنے چلی جاتی ہے، لیکن یہ ڈبل زندگی زیادہ دن چھپ نہ سکی۔
एक दिन इमरान ने अचानक सादिया के बैग में झांका। अंदर से एक नया सम कार्ड और कुछ कागजात निकले। जब उसने पूछा तो सादिया का रंग उड़ गया। वो बहाने बनाने लगी, लेकिन इमरान को शक हो चुका था। इधर दूसरी तरफ हमजा को भी शक होने लगा। सादिया अक्सर फोन कॉल्स के दौरान घबरा जाती, कभी किसी सवाल का सीधा जवाब न देती। हमजा सोचने लगा कि सादिया वाकई मुझसे मुखलिस है या फिर वो भी कोई राज छुपा रही है। अब दोनों शौहर अपने अपने तरीके से शक में पड़ चुके थे। इमरान ने चुपके से सादिया के फोन पर नजर रखना शुरू कर दी और हमजा अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके सादिया के बारे में मालूमात निकालने लगा। लेकिन सादिया को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब वो एक ऐसे जाल में फंसने जा रही है जहां एक झूठ उसे बेनकाब भी कर सकता है और उसकी जिंदगी को खतरे में भी डाल सकता है। एक रात इमरान ने सादिया का पीछा किया। वो देखता है कि सादिया एक अजनबी गली में जा रही है। इमरान दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा तो क्या देखता है, अंदर हमजा मौजूद था और दरमियान में एक आदमी की खून आलू लाश पड़ी थी। इमरान सकते में आ गया। हमजा चीख कर बोला, ये सब सादिया ने किया है, मैं बेकसूर हूँ। सादिया रोते हुए चिल्लाई, नहीं, ये लाश उस शख्स की है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। वो हमारे राज खोलने की धमकी दे रहा था। मैंने बस बचाव के लिए धक्का दिया और वो गिरकर मर गया। इमरान के होश उड़ गए। एक तरफ बीवी, दूसरी तरफ लाश और तीसरी तरफ दूसरा शौहर हमजा। इमरान सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे। पुलिस को खबर मिल गई। तफ्तीश शुरू हुई तो एक लर्जा खेज इंकशाफ सामने आया। जिस आदमी की लाश थी वो दरअसल सादिया का तीसरा रिश्ता था। जी हाँ, सादिया एक वक्त में 3 ताल्लुकात में फंसी हुई थी। इमरान और हमजा को शौहर बनाया
اور تیسرے شخص کو پیسوں کے لیے استعمال کرتی رہی۔ جب اس نے سب کچھ فاش کرنے کی دھمکی دی تو سعدیہ نے اس کا قتل کر دیا۔ آخر کار سعدیہ نے سب کچھ مان لیا۔ عدالت نے سعدیہ کو قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا دے دی۔ عمران اور حمزہ دونوں اپنی عزت اور زندگی برباد ہونے کے بعد الگ الگ ہو گئے، اور محلے میں یہ کہانی ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گئی۔ ایک بیوی کے دو شوہر اور تیسرا راز جس نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ آج کی کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس کے دو شوہر تھے، لیکن جب راز کھلا تو پورا محلہ لہو سے لال ہو گیا۔ کیا یہ محبت تھی یا دھوکہ؟ اور آخر کس نے کس کا قتل کیا؟ آئیے جانتے ہیں یہ لرزہ خیز کہانی۔ کراچی کے ایک پرانے علاقے میں سعدیہ نامی لڑکی رہتی تھی۔ گھر والوں نے اس کی شادی عمران سے کر دی جو کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا۔ چند دن تک سب ٹھیک رہا، مگر جلد ہی عمران کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ شراب، غصہ اور شک کرنے کی عادت سعدیہ کی زندگی جہنم بن گئی۔ ایک دن کالج کی ایک پرانی دوست کے فنکشن میں سعدیہ کی ملاقات ہوئی حمزہ سے۔ حمزہ نہ صرف تعلیم یافتہ تھا بلکہ اپنی گفتگو اور رکھ رکھاؤ سے فوراً متاثر کر دیتا تھا۔ اس کا انداز، اس کی بات کرنے کی نرمی اور سب سے بڑھ کر سعدیہ کو عزت دینا، یہ سب وہ چیزیں تھیں جو اسے عمران سے کبھی نہ مل سکیں۔ رفتہ رفتہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چھپ چھپ کے فون کالز، میسیجز اور کبھی کبھار ملنے کے بہانے۔ سعدیہ کو محسوس ہوا کہ حمزہ کے ساتھ وہ سکون ہے جو عمران کی سخت مزاجی اور غصے میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ لیکن حمزہ کے بارے میں ایک راز تھا
जो सादिया के लिए एक मुअम्मा बन गया। हमजा अक्सर अपनी नौकरी के बारे में बात करने से कतराता था। वो बस इतना कहता, मैं एक हसास इदारे में काम करता हूँ, ज्यादा सवाल मत करो। कभी कभी वो अचानक कई दिनों के लिए गायब हो जाता। फोन बंद, कोई राब्ता नहीं। वापसी पर इसकी आंखों में नींद की कमी और चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी होती। सादिया ने कई बार पूछा, आखिर तुम करते क्या हो? लेकिन जवाब हमेशा एक ही था, तुम्हें जितना जानना चाहिए तुम इतना ही जानो, बाकी तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। यही पुरस्रारियत सादिया को मजीद हमजा की तरफ खींचने लगी। आखिरकार दोनों ने खुफिया निकाह कर लिया। अब सादिया के दो शौहर थे, इमरान और हमजा, लेकिन किसी को भी दूसरे के बारे में इल्म न था। असल मसला तब शुरू हुआ जब इमरान को सादिया के रवैये में तब्दीली महसूस होने लगी और दूसरी तरफ हमजा के गायब होने के दिन बढ़ने लगे। सादिया के जहन में एक खौफनाक सवाल गूंज रहा था, क्या हमजा वाकई वो है जो कहता है, या फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज छुपा है जो सब कुछ तबाह कर देगा। दिन के वक्त सादिया अपने शौहर इमरान के साथ रहती, खाना बनाती, घर के काम करती और आम घरेलू बीवी की तरह का किरदार निभाती। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता, वो मुख्तलिफ बहाने बनाने लगती। कभी कहती, अम्मी की तबीयत खराब है, आज मेके जाना है। कभी कहती, दोस्त के घर जाना है काम के सिलसिले में। और यूं हर रात वो चुपके से हमजा के पास पहुंच जाती। मोहल्ले वाले भी सोचने लगे कि आखिर सादिया को मेके में इतनी क्या मुसीबत पड़ी है कि वो अक्सर वहां रहने चली जाती है। लेकिन ये डबल जिंदगी ज्यादा दिन छप न सकी। एक दिन इमरान ने अचानक सादिया के बैग में झांका। अंदर से एक नया सम कार्ड और कुछ कागजात निकले।
जब उसने पूछा तो सादिया का रंग उड़ गया। वो बहाने बनाने लगी, लेकिन इमरान को शक हो चुका था। इधर दूसरी तरफ हमजा को भी शक होने लगा। सादिया अक्सर फोन कॉल्स के दौरान घबरा जाती, कभी किसी सवाल का सीधा जवाब न देती। हमजा सोचने लगा, क्या दिया वाकई मुझसे मुखलिस है या फिर वो भी कोई राज छुपा रही है। अब दोनों शौहर अपने अपने तरीके से शक में पड़ चुके थे। इमरान ने चुपके से सादिया के फोन पर नजर रखना शुरू कर दी और हमजा अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके सादिया के बारे में मालूमात निकालने लगा। लेकिन सादिया को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब वो एक ऐसे जाल में फंसने जा रही है जहां एक झूठ उसे बेनकाब भी कर सकता है और उसकी जिंदगी को खतरे में भी डाल सकता है। एक रात इमरान ने सादिया का पीछा किया। वो देखता है कि सादिया एक अजनबी गली में जा रही है। इमरान दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा तो क्या देखता है, अंदर हमजा मौजूद था और दरमियान में एक आदमी की खून आलूद लाश पड़ी थी। इमरान सकते में आ गया। हमजा चीख कर बोला, ये सब सादिया ने किया है, मैं बेकसूर हूँ। सादिया रोते हुए चिल्लाई, नहीं, ये लाश उस शख्स की है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। वो हमारे राज खोलने की धमकी दे रहा था। मैंने बस बचाव के लिए धक्का दिया और वो गिरकर मर गया। इमरान के होश उड़ गए। एक तरफ बीवी, दूसरी तरफ लाश और तीसरी तरफ दूसरा शौहर हमजा। इमरान सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे। पुलिस को खबर मिल गई। तफ्तीश शुरू हुई तो एक लर्जा खेज इंकशाफ सामने आया। जिस आदमी की लाश थी वो दरअसल सादिया का तीसरा रिश्ता था। जी हाँ, सादिया एक वक्त में 3 ताल्लुकात में फंसी हुई थी। इमरान और हमजा को शौहर बनाया और तीसरे शख्स को पैसों के लिए इस्तेमाल करती रही। जब उसने सब कुछ फाश करने की धमकी दी
तो सादिया ने उसका कत्ल कर दिया। आखिरकार सादिया ने सब कुछ मान लिया। अदालत ने सादिया को कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा दे दी। इमरान और हमजा दोनों अपनी इज्जत और जिंदगी बर्बाद होने के बाद अलग अलग हो गए और मोहल्ले में ये कहानी हमेशा के लिए मशहूर हो गई। एक बीवी के दो शौहर और तीसरा राज जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसके दो शौहर थे, लेकिन जब राज खुला तो पूरा मोहल्ला लहू से लाल हो गया। क्या ये मोहब्बत थी या धोखा? और आखिर किसने किसका कत्ल किया? आइए जानते हैं ये लर्ज़ाखेज कहानी। कराची के एक पुराने इलाके में सादिया नामी लड़की रहती थी। घर वालों ने उसकी शादी इमरान से कर दी, जो कपड़ों का कारोबार करता था। चंद दिन तक सब ठीक रहा, मगर जल्द ही इमरान का असल चेहरा सामने आ गया। शराब, गुस्सा और शक करने की आदत सादिया की जिंदगी जहन्नम बन गई। एक दिन कॉलेज की एक पुरानी दोस्त के फंक्शन में सादिया की मुलाकात हुई हमजा से। हमजा न सिर्फ तालीम याफ्ता था, बल्कि अपनी गुफ्तगू और रखाव से फौरन मुतासिर कर देता था। उसका अंदाज, उसकी बात करने की नरमी और सबसे बढ़कर सादिया को इज्जत देना, ये सब वो चीजें थीं जो उसे इमरान से कभी न मिल सकें। रफ्ता रफ्ता मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। छुप छुप के फोन कॉल्स, मैसेजेस और कभी कभार मिलने के बहाने। सादिया को महसूस हुआ कि हमजा के साथ वो सुकून है जो इमरान की सख्त मजाजी और गुस्से में कहीं गुम हो गया था। लेकिन हमजा के बारे में एक राज था जो सादिया के लिए एक मुअम्मा बन गया। हमजा अक्सर अपनी नौकरी के बारे में बात करने से कतराता था। वो बस इतना कहता,
मैं एक हसास इदारे में काम करता हूँ, ज्यादा सवाल मत करो। कभी कभी वो अचानक कई दिनों के लिए गायब हो जाता, फोन बंद, कोई राब्ता नहीं। वापसी पर इसकी आंखों में नींद की कमी और चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी होती। सादिया ने कई बार पूछा, आखिर तुम करते क्या हो? लेकिन जवाब हमेशा एक ही था, तुम्हें जितना जानना चाहिए तुम इतना ही जानो, बाकी तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। यही पुरस्रारियत सादिया को मजीद हमजा की तरफ खींचने लगी। आखिरकार दोनों ने खुफिया निकाह कर लिया। अब सादिया के दो शौहर थे, इमरान और हमजा, लेकिन किसी को भी दूसरे के बारे में इल्म न था। असल मसला तब शुरू हुआ जब इमरान को सादिया के रवैये में तब्दीली महसूस होने लगी, और दूसरी तरफ हमजा के गायब होने के दिन बढ़ने लगे। सादिया के जहन में एक खौफनाक सवाल गूंज रहा था, क्या हमजा वाकई वो है जो कहता है, या फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज छुपा है जो सब कुछ तबाह कर देगा। दिन के वक्त सादिया अपने शौहर इमरान के साथ रहती, खाना बनाती, घर के काम करती और आम घरेलू बीवी की तरह का किरदार निभाती। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता, वो मुख्तलिफ बहाने बनाने लगती। कभी कहती, अम्मी की तबीयत खराब है, आज मेके जाना है। कभी कहती, दोस्त के घर जाना है काम के सिलसिले में। और यूं हर रात वो चुपके से हमजा के पास पहुंच जाती। मोहल्ले वाले भी सोचने लगे कि आखिर सादिया को मैके में इतनी क्या मुसीबत पड़ी है कि वो अक्सर वहां रहने चली जाती है। लेकिन ये डबल जिंदगी ज्यादा दिन छप न सकी। एक दिन इमरान ने अचानक सादिया के बैग में झांका। अंदर से एक नया सम कार्ड और कुछ कागजात निकले। जब उसने पूछा तो सादिया का रंग उड़ गया। वो बहाने बनाने लगी, लेकिन इमरान को शक हो चुका था। इधर दूसरी तरफ हमजा को भी शक होने लगा।
सादिया अक्सर फोन कॉल्स के दौरान घबरा जाती, कभी किसी सवाल का सीधा जवाब न देती। हमजा सोचने लगा, क्या दिया वाकई मुझसे मुखलिस है या फिर वो भी कोई राज छुपा रही है। अब दोनों शौहर अपने अपने तरीके से शक में पड़ चुके थे। इमरान ने चुपके से सादिया के फोन पर नजर रखना शुरू कर दी और हमजा अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके सादिया के बारे में मालूमात निकालने लगा। लेकिन सादिया को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब वो एक ऐसे जाल में फंसने जा रही है जहां एक झूठ उसे बेनकाब भी कर सकता है और उसकी जिंदगी को खतरे में भी डाल सकता है। एक रात इमरान ने सादिया का पीछा किया। वो देखता है कि सादिया एक अजनबी गली में जा रही है। इमरान दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा तो क्या देखता है, अंदर हमजा मौजूद था और दरमियान में एक आदमी की खून आलूद लाश पड़ी थी। इमरान सकते में आ गया। हमजा चीख कर बोला, ये सब सादिया ने किया है, मैं बेकसूर हूँ। सादिया रोते हुए चिल्लाई, नहीं, ये लाश उस शख्स की है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। वो हमारे राज खोलने की धमकी दे रहा था। मैंने बस बचाव के लिए धक्का दिया और वो गिरकर मर गया। इमरान के होश उड़ गए। एक तरफ बीवी, दूसरी तरफ लाश और तीसरी तरफ दूसरा शौहर हमजा। इमरान सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे। पुलिस को खबर मिल गई। तफ्तीश शुरू हुई तो एक लर्जा खेज इंकशाफ सामने आया। जिस आदमी की लाश थी